So now students, we are starting with the exercise number 6.2. Okay, in this exercise we will be using the application of basic proportionality theorem and its converse. So let's start with the first question. Here we have a question. It is given that triangle ABC and there is a line DE which is parallel to, it is given that DE is parallel to BC and it is 1.5 and 1.5, then DE is 3. This is given 1 centimeter, and what is asked in the first case, EC is asked. Okay, so this is asked. So in triangle ABC, DE is parallel to BC, therefore AD upon DB is equals to AE upon EC. AD upon DB is equals to AE upon EC. Part by part is equals to part by part. So 1.5 upon 3 is equals to 1 upon EC. 1.5 twos are, so the value of EC will be 2 centimeter, like this. Similarly, one more question we are having, and it is 7.2 centimeter and this is 1.8 centimeter, this is 5.4 centimeter. So again, these are the same figure, both are the same figures, but they have the measurements different. Here also we have DE parallel to BC, therefore in triangle ABC, DE is parallel to BC, so AD upon DB is equals to AE upon EC. This is the result using BPT. This is the result using BPT. So AD we have to calculate. AD upon DB is equals to 18 threes are 3. So AD will be equal to 2.4 centimeter. So these are the question. This is the question based on the application of basic proportionality theorem. So this is basic proportionality theorem. Now the second question, which is based on the converse of basic proportionality theorem. The basic difference between the basic proportionality theorem and the converse of basic proportionality theorem is that in the converse, it is given that the two parts are proportional and we have to prove that the lines are parallel. If the two parts are proportional, then the lines are parallel. But BPT में क्या होता है? BPT में लाइन पैरेलल दी रहती है और वो पार्ट्स को हमें प्रोपोर्शनल लिखना पड़ता है. ध्यान रखिएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 2. Now here we have E and F are the points on the side. PQ and PR. E and F are the points on the side. E and F are the points on the sides. PQ and PR of triangle PQR. And we have to prove that for the following, we have to prove whether EF is parallel to QR or not. So PE 3.9, EQ 3, PE 3.9, EQ 3, PE 3.9, EQ 3, PF 3.6, and FR is given equal to 2.4 centimeter. देखो स्टूडेंट्स, कन्वर्स में इसमें क्या होता है, पैरेलल दिया रहता है और रेशियो को बराबर लेके चलते हैं. DE पैरेलल टू BC दिया हुआ था तो हमने क्या लिखा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC लिखा है ना. पैरेलल दिया था तो ये लिखा था, ये BPT है. और अगर हमें ये इक्वल आ गए रेशियो, PE का EQ के साथ जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 1.3 अपॉन 1 कह दो या 13 अपॉन 10 कह लो,
और पीई का हो गया EQ के साथ, पीएफ का एफआर के साथ 3.6 अपॉन 2.4, 12 3 36, ये 3/2 आया। देयरफॉर ये जो रेशियो है ये बराबर नहीं आया, सो दिस इंप्लाइज दैट EF इज नॉट पैरेलल टू QR, EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ये है। तो यहाँ पर EF जो है वो इसके पैरेलल नहीं होगा क्योंकि रेशियो बराबर नहीं आया। अगर रेशियो बराबर आ जाता तब हम कहते हैं कि वो उसके पैरेलल है। ठीक है, अब अपन इसको चेंज करते हैं, क्वेश्चन में कुछ और दूसरे पार्ट, सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है 4 PEQE 4 और 4.5, 4 और 4.5, और PF और FR 8 और 9, PF और FR 8 और 9 दिया हुआ है। तो 4/4.5 ये हो जाएगा 40/45, 8/9 ये हो जाएगा, इधर 8/9 पहले से ही दिया हुआ है। ये दोनों हमारे पास कैसे आ गए, बराबर आ गए, दे आर पैरेलल। दिस इंप्लाइज दैट बाय converse of BPT EF will be parallel to QR. By converse of BPT EF will be parallel to QR. This is the second part. Second part में प्रूफ हो गया है। अब PQ 1.28 दिया हुआ है, देखो ये पूरा PQ जो दिया हुआ है 1.28 दिया हुआ है ना। अब ये अलग अलग की बात नहीं है, है ना, पूरा PQ दिया हुआ है 1.28। अपन को PR दिया है 2.56, ये जो PR है पूरा वो दिया है 2.56, है ना, पूरा PR दिया है 2.56, और PE 0.18 और PF 0.36। तो देने के हिसाब से जो आपको गिवन है उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा रेशियो, क्योंकि आपको होल अपॉन पार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। PE अपॉन PQ लिखना पड़ेगा, और यहां पर PF अपॉन PR लिखना पड़ेगा। तो PE अपॉन EQ देखें, PE कितना है 0.18 अपॉन EQ कितना है 1.28, दिस विल बी 18/128। सो 6 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 2 से, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 60, 4 PF अपॉन PR। तो PF अपॉन PR पार्ट बाय होल है ना, 0.36 अपॉन 2.56, इसको लिखा 36 अपॉन 256, 4 9 जा 4 64 जा, this is also the same 9/64। so again the ratios are same, therefore we can say that EF is parallel to QR। ठीक है, ये तो ये दो क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बीपीटी की एप्लीकेशन है, बीपीटी को कैसे यूज करा जाता है वो बताया गया है, जबकि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो बताया गया है। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस को, क्योंकि एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो हमारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आते हैं, उनमें इस तरह के सवालों का उपयोग हो सकता है, वो इस तरह के सवालों को यूज कर सकते हैं। अब अपन आते हैं और अपन आप समझ रहे हैं एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल, सवाल नंबर 3, ध्यान से देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर हमारा जो है, डायग्राम हमारा है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। डायग्राम देखकर हमें समझ में आ जाए कि क्या क्या गिवन कंडीशन है, बार बार हमें क्वेश्चन ना देखना पड़े, क्योंकि अगर हम बार बार क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो फिर हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ये हमें प्रूफ करना है, ये जरूर लिख लेना चाहिए अपन को।
क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है वो जरूर लिखना चाहिए। और डायग्राम हमारा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हम उसे बढ़िया बना लें, डायग्राम को अच्छा इंफॉर्मेटिव डायग्राम बनना चाहिए हमारा, इसका ध्यान रहे ताकि एक बार फिगर बन जाए, एक बार डायग्राम बन जाए, फिर क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं ट्राइंगल ABC में। आप देख रहे होंगे सब लोग, ट्राइंगल ABC सबको दिख रहा होगा। और ट्राइंगल ABC में आप देख रहे होंगे कि ये जो एक लाइन है ML, वो पैरेलल है किसके? BC के। लाइन ML इज पैरेलल टू BC। तो कैसे लिखेंगे? अब यहां पर उन्होंने कैसे लिखा है? AM अपॉन AB। तो AM अपॉन AB लिखा है, तो पार्ट बाय होल लिखा है। तो आप जब बीपीटी लगाओगे तो भी आप पार्ट बाय होल ही लिखना। तो कहां शुरू करेंगे? यहां से शुरू करेंगे अपन। तो AM अपॉन AB पार्ट बाय होल, तो यहां पर भी पार्ट बाय होल AL अपॉन AC बाय बीपीटी। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम ADC, जहां पर NL पैरेलल है DC के। फिर यहां पर भी पार्ट बाय होल लेंगे, तो AN अपॉन AD इज इक्वल्स टू AL अपॉन AC। ये सेकंड इक्वेशन बन गई विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, वो दोनों सेम आ गई। इसमें भी AL अपॉन AC आ गया, इसमें भी AL अपॉन AC आ गया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we conclude that AM upon AB will be equal to AN upon AD। ये हमें प्रूव करना है इस तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बीपीटी का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे से सवाल किया है। फिर आते हैं अपन एक और सवाल पर। ADB, FEC, यहां पर आपको दिया गया है DE AC के पैरेलल है, जो DE है वो AC के पैरेलल है, जो AE है वो DF के पैरेलल है। AE जो है वो DF के पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE is equals to BF upon FE is equals to BE upon EC। ये हमें प्रूव करना है। तो अब आप देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिसके अंदर एक लाइन पैरेलल खिंची हुई है, ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल खिंची हुई है एक लाइन। अब देखिए आप समझा करिए कि ट्राइंगल कौन सा लिया जाए। ट्राइंगल अगर DE जो है, अगर DE AC के पैरेलल है तो कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए हमको? तो हमको ट्राइंगल लेना चाहिए ABC। क्यों? क्योंकि आप देखो DE जो है वो ट्राइंगल ABC के अंदर है और AC हमारी थर्ड साइड है, तो इसलिए ट्राइंगल ABC लिया जाएगा। यहां लिख देंगे DE is parallel to AC। तो ये बनेगा DE parallel to AC। अब कैसे लिखें अपन? BE अपॉन EC लिखें या BE अपॉन BC लिखें, पार्ट बाय होल लिखें, या पार्ट बाय पार्ट लिखें। देखो अभी थोड़ी देर के लिए आप इन लाइनों को भूल जाओ, ये लाइन आप देखो ही मत, थोड़ी देर के लिए आप इन लाइनों को भूल जाओ, बाद में अपन ड्रॉ कर लेंगे। तो अपन लिखें क्या? अपन क्या लिखें? BE अपॉन BC लिखें क्या? आपको क्या दिया हुआ है? BE अपॉन EC, मतलब पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है। तो BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DA। पार्ट बाय पार्ट दिया है, पार्ट बाय पार्ट यूज करेंगे। ये लग गई बीपीटी। अब अपन बात करते हैं किसकी? ये जो लाइन थी अपने, इसके पैरेलल अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी थी यहां से, अरे और एक लाइन अपनी इधर थी, बना रहे हैं वो F, ठीक है ना। अब ये जो है ये इसके पैरेलल है। तो अब कौन सा ट्राइंगल, अगर अपन इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दें, जो अभी अपन ने यूज कर चुके हैं लाइन, उसे मिटा दें, तो कौन सा ट्राइंगल आ रहा है? ट्राइंगल का नाम आ
और ए बी के अंदर क्या है, डी एफ पैरेलल टू ए ई है। तो डी एफ पैरेलल टू ए ई है तो कैसे लिखोगे, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। ये लग गया बीपीटी और ये आ गया आंसर आपका फ्रॉम 1 and 2। ये बी डी अपॉन डी ए सेम आ गया, तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये आपका प्रूफ आ गया। ये जो चीजें हैं इन पर फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप इनको समझेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। ए बी सी आएगा यहाँ पर इस तरह से। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीटी आपको लगाना है। अगर आपको बीपीटी लगाना है तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि किस प्रकार से ट्राइंगल्स को लिया जाएगा। ट्राइंगल्स को हमेशा इस प्रकार से लिया जाता है कि उसके अंदर एक लाइन जो है वो पैरेलल होना चाहिए किसी एक साइड के, ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन होना चाहिए। जब ऐसा होता है तभी हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, बीपीटी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम बना लें पहले अपन। बड़ा ही सरल सा सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल। Again we have a set of parallel lines, pair of parallel lines, and the figure is like PQR, EF and DO. This is D and this is O. This line is not there. So like this we will be, and it is given that D is parallel to OQ, D is parallel to OQ and DF is parallel to OR. What we have to prove here? We have to prove here that EF is parallel to QR. अब देखिए यहाँ पर रेशियो नहीं प्रूव करना है, EF is parallel to QR बताना है। तो अगर पैरेलल बताना है मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा। मैंने आपसे कहा हुआ है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पैरेलल प्रूफ करा जाता है और रेशियो बराबर दिए जाते हैं। बीपीटी में आपको रेशियो बराबर प्रूफ करना होता है और पैरेलल लाइन दी जाती है। तो ये दो अंतर है दोनों में। अब आप देखिए कौन सा ट्राइंगल हमें लेना चाहिए। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो हमें ये ट्राइंगल लेना चाहिए, और इस ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल है, इसका नाम PQO। अब PQO में QO जो है लाइन, QO साइड ऑफ द ट्राइंगल है, वो AD के पैरेलल है। तो कैसे लिखोगे, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। ये हमने बीपीटी का इस्तेमाल करा और बीपीटी का इस्तेमाल करके ले आए। उसके बाद अपन आते हैं दूसरे ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल PRO, जहां पर RO इज पैरेलल टू FD है, RO इज पैरेलल टू FD है। तो कैसे लिखोगे, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। अब देखिए आप ध्यान से, दोनों में PD अपॉन DO आया कि नहीं आया, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 दोनों से अगर हम देखें तो क्या आ गया, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। क्या आ गया, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर ये रेशियो बराबर होते हैं ट्राइंगल में, अगर ये रेशियो जैसे मान लीजिए ABC है, ये PQ है, अगर AP अपॉन PB का रेशियो वही होता है जो AQ और QC का रेशियो होता है, तो कन्वर्स कहता है PQ इज पैरेलल टू BC। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, अगर रेशियो बराबर है तो ट्राइंगल के अंदर जो लाइन खींची हुई है वो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होगी। अगर रेशियो बराबर है तो ट्राइंगल के अंदर खींची हुई लाइन ट्राइंगल के साइड के पैरेलल होगी। PQ विल बी पैरेलल टू BC अगर ये रेशियो बराबर है। यहाँ पर भी आप देखो PE और EQ का रेशियो, PF और FR का रेशियो बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं EF is parallel to QR by converse of BPT. We call it CBPT, converse of BPT। तो converse of BPT यहाँ पे लगा दी तो है हमने, लेकिन
आपको पता हो तो डिलीशन में कन्वर्स ऑफ बीपीटी आ गया है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है वो हमारे कोर्स में इस साल नहीं है। एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं है, दूसरा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, और तीसरा नहीं कन्वर्स ऑफ बीपीटी सॉरी है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, और एक और है एरिया रेशियो थ्योरम, वो एक्सरसाइज भी हमारे लिए हटा दी गई है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं और लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 sorry question number 6 again we have in question number 6 also we are having a triangle. So let's draw it first of all. And PQR and ABC, this is O. And it's given that in the question that AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR, AC is parallel to PR. We have to prove that BC will be parallel to QR. तो पैरेलल फिर प्रूफ करना है, मतलब एक बार फिर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं POQ, जहां पर AB जो है वो PQ के पैरेलल है। आपको ट्राइंगल दिख गया होगा, हमने ट्राइंगल लिया है POQ, जहां पर जो आपका AB है वो PQ के पैरेलल है। तो लिखें OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ बाय BPT। और अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, एक और ट्राइंगल ले सकते हैं POR, क्योंकि यहां पे भी कहा गया है कि AC जो है वो PR के पैरेलल है। तो कैसे लिखोगे, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OA upon AP. This is by BPT. Now from 1 and 2, दोनों में आप देख रहे होंगे OA upon, दोनों में आपको OA upon AP मिल गया। OA upon AP is equals to OC upon CR। कोई गलत लिख दिया है, मैंने देखता हूं। OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ, और यहां पर OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। गलत लिख दिया था। तो OA अपॉन AP आप देख रहे हो दोनों में आ गया है, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, BO अपॉन BQ इज इक्वल्स टू CO अपॉन CR। BO अपॉन BQ, CO अपॉन CR अगर आ गया, रेशियो बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं BC is parallel to QR by converse of BPT, by converse of BPT हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो सवाल है सारे के सारे जो अपन ने अभी डिस्कस करे, दोनों सवाल, ये लास्ट के दोनों सवाल जो अभी डिस्कस करे, दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये दोनों के दोनों एक जैसे सवाल हैं। दोनों में बीपीटी लग रहा है, फिर बाद में कन्वर्स लग रहा है, तो दोनों सवाल एक जैसे हैं। ध्यान से इनको समझ करके और कर लीजिए इसे। Now we are moving on to question number 7, where we are going to prove the midpoint theorem. And what is that midpoint theorem? It states that a line through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Midpoint theorem क्या कह रही है यहाँ पर? A line drawn parallel to one side of it, a line through the midpoint of one side, a line through the midpoint of one side parallel to another side bisect the third side. मतलब हमसे कहा गया है कि P is midpoint of AB and PQ is parallel to BC. P जो है वो midpoint है AB का और PQ पैरेलल है BC के, तो प्रूफ करो Q भी होगा midpoint AC का। तो सबसे पहले क्योंकि PQ पैरेलल है ABC के, तो ट्राइंगल ABC ले लिया जाए, जहां पर PQ पैरेलल है BC के, तो AP अपॉन PB will be equal to AQ upon QC। ये लगाया बीपीटी अपन ने।
अब एपी और पीबी तो बराबर हैं। क्यों एपी और पीबी बराबर हैं? क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore PA is equals to PB। PA और PB बराबर है, इसीलिए AQ का के बराबर आ गया, QC के बराबर आ गया, मींस Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमें प्रूफ करना था। AP और PB वहां पर बराबर हैं। अगर AP और PB यहां पर बराबर है तो AP और PB का रेशियो 1:1 हो जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर दो चीजें अगर बराबर हैं तो उनका रेशियो 1:1 होता है। अगर AP और PB बराबर हैं तो रेशियो देखिए क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 आने से क्या हुआ, AQ का के बराबर हो गया, QC के बराबर हो गया। जब AQ QC के बराबर हो गया तो हमने ये कह दिया कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही हमें प्रूफ करना था। ये बेसिक सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है। अब मिड पॉइंट थ्योरम का दूसरा पार्ट है, वो उसमें इसमें बीपीटी लगा, इसमें कन्वर्स लग जाएगा, क्योंकि यहां पर वो कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle is parallel to the third side. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. M is the midpoint of PQ. Therefore, PM और MQ का रेशियो 1:1 होगा। और हमें कहा गया है कि N is the midpoint of PR, तो Pn अपॉन Nr का रेशियो वो भी 1:1 होगा, क्योंकि ऐसा है अगर मिड पॉइंट है, दो बराबर भाग हैं, और अगर दो बराबर भाग हैं तो उनका रेशियो भी 1:1 होगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड, Pm अपॉन Mq विल बी इक्वल टू Pn अपॉन Nr। तो Pm अपॉन Mq इज इक्वल्स टू Pn अपॉन Nr अगर आता है, Pm अपॉन MQ इज इक्वल्स टू Pn अपॉन Nr आता है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कहा जाता है Mn इज पैरेलल टू QR। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन कंक्लूड दैट Mn विल बी पैरेलल टू QR। तो ये दो जो है ये मिड पॉइंट थ्योरम के ही कांसेप्ट हैं, दोनों के दोनों हमें थ्योरम पता रहना चाहिए। पहला थ्योरम कहता है कि a line through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, और दूसरा कहता है the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत बेहतरीन सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल एक्सरसाइज का डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ में। देखिएगा जरा कैसे हो रहा है। हमसे कहा गया है कि किसी ट्रेपेजियम ABCD में अगर ABCD के पैरेलल है तो AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD होता है। ध्यान से देखिएगा, किसी ट्रेपेजियम में जिसमें ABCD के पैरेलल है और डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूफ करना पड़ेगा हमको कि AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD। तो एक कंस्ट्रक्शन किया हमने यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉन OE पैरेलल टू DC जो कि पैरेलल है AB के, है ना। क्या ड्रॉ किया अपन ने, ड्रॉ OE पैरेलल टू DC विच इज ऑटोमेटिकली गेट पैरेलल टू AB। तो शुरू करें। अब अपन यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं ADC, ट्राइंगल ADC जहां पर EO पैरेलल है DC के। ADC ट्राइंगल देख रहे हो आप, बड़ा वाला ट्राइंगल है ADC, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ आधा ट्राइंगल है ट्रेपेजियम का, हाफ डायगोनल की मदद से जो बना है उसका नाम है ADC। ADC के अंदर EO जो है वो पैरेलल है DC के, तो हम क्या लिखेंगे, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ये बीपीटी लगा दी, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। अब एक चीज और देख लो, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो भी OE जो है वो AB के पैरेलल है। अभी OE DC के पैरेलल था,
अब इस ट्राइंगल में अगर हम देख रहे हैं, इसका नाम है एबीडी। इस एबीडी ट्राइंगल में जो ओई है वो एबी के पैरेलल है, तो कैसे लिखेंगे? अब यहां से लिखना पड़ेगा क्योंकि एई अपॉन ईडी चाहिए ना, तो एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी विल बी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी। ये आ गया, बीपीटी लग गया यहां पर भी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we got AO upon OC is equals to OB upon OD। लेकिन हमें प्रूफ में क्या चाहिए? AO upon OB। जो हमने क्या करा, OC को यहां ले गए, OB को यहां ले आए, OC यहां चला गया, OB यहां आ गया, तो OC upon OD ये हमें प्रूफ करना था। AO upon OB is equals, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, इसीलिए इसको अच्छे से कर लीजिए। आपको वो क्या करेगा, डायगोनल के पार्ट्स दे देगा, जैसे उसने AO दे दिया, OB दे दिया, OC दे दिया और OD पूछ लेगा, या उसने सारे दे दिए इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा भी कर सकता है वो कि सारे दे देगा, वो AO भी दे देगा, OB भी दे देगा, OC भी दे देगा, OD भी दे देगा, बट इन टर्म्स ऑफ x दे देगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब इसी सवाल का हम कन्वर्स करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, और यहां पर ये बताया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, तो प्रूव करिए कि वो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, क्या इसमें क्या था, ट्रेपेजियम में हमने प्रूफ करा था कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो डायगोनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, डायगोनल्स एक ही रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि अगर डायगोनल्स सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो वो एक ट्रेपेजियम होगा। उसके लिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा अपन ने, उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा OE पैरेलल टू DC। ठीक है, OE का के पैरेलल हो गया, लिया है अपन ने DC के पैरेलल लिया है, और अगर DC AB के पैरेलल हो गया या OE AB के पैरेलल हो गया तो AB और DC पैरेलल हो गए। अगर AB और DC पैरेलल हो गए तो ये क्या बन गया, ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, अगर AB is parallel to DC बता दिया। If we had proved that AB parallel to DC then it will become a trapezium। अच्छा, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया है AO upon OB is equals to OC upon OD, ऐसा दिया हुआ है अपन को, ये गिवन है। दूसरा, अगर मैं ट्रायंगल ADC ले लूं, जैसा पहले लिया था मैंने, ADC ट्रायंगल में OE पैरेलल टू DC आ जाए तो क्या आएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ठीक है ना, लेकिन अब यहां पर तो AO अपॉन OB आ रहा है, तो भैया पहले इसको ठीक कर लो, AO अपॉन OC कर लो इसको। कैसे हो गया, OC समझ में आया, ये OC यहां चला गया, OB यहां आ गया, तो ये आ जाएगा आपका। ये गिवन को ठीक करना पड़ेगा, बिगर गिवन को ठीक करे आप सवाल नहीं कर पाओगे ये वाला। तो AO अपॉन OC, अब यहां पर भी बीपीटी लगाई थी अपन ने, तो एक इक्वेशन बन करके आ गई हमारे पास में। तो AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू AE अपॉन ED। तो फ्रॉम 1 and 2 AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। देखो AE अपॉन ED पार्ट बाय पार्ट, OB अपॉन OD पार्ट बाय पार्ट, तो मतलब ट्रायंगल में रेशियो बराबर हो रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं OE विल बी पैरेलल टू AB बाय कन्वर्स ऑफ BPT। बट we had constructed that OE is parallel to CD by construction. This implies that AB is parallel to CD, which finally implies that ABCD is a trapezium, which finally implies that ABCD is a trapezium। तो ये इस तरह से अपन ने एक ट्रेपेजियम प्रूफ कर दिया। तो ये एक्सरसाइज के सवाल थे,
बच्चों एक बात का ध्यान रखना, कुछ सवाल यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 के फॉर्म में दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को जरूर कर लेना क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम्पल जरूर करके देखिएगा और अगर आपको डाउट लगे तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी और आगे क्वेश्चंस, आगे की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भिजवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।